Sure. So first of all, we are starting with the DT wala point. In DT, what is important? I have already given you the paper analysis, right? Okay. So it is all part of the mentoring. I have already given you DT ka paper analysis. Past 4-5 papers were there, and you would have analyzed very well that it is only 4 chapters that are getting repeated again and again. I can't say that other chapters are not coming, but the major portion, that is 60 to 65 marks, belongs to TDS, TCS, assessment procedure, and your various entity and international taxation. मतलब anyhow, if I want to focus, तो मेरा focus area पहले होना चाहिए international taxation, then it should be various entity anyhow. And those who have taken the planner, उनका planner ABC category के according ही है, ठीक है? Now, first coming to the very first topic, and the very first topic is, ma'am, general tax rate. ये general tax rate में क्या है? Now, what you should do in your copy, how you should make a format. At least you should have this kind of format. What is the chapter number? The section number you must write here, and then ABC analysis, and then types of question. Because I am going to tell you the types of question that would be coming from that particular section also. So your mind should have a mind ना कि इस concept पे इस तरह का question आता है, ठीक है? So you should have this chapter, section, ABC category, and type of question that are expected from that particular section. Do it quickly, because we have shortage of time and we have little bit more to write. Done? Section wise done? Sure. So first of all, what I am starting with, general tax. So we are using the indexation from compact. So whatever is the chapter, you must write that chapter number here. Okay. After writing the chapter number, now I am coming to again this. Ma'am, in this we have tax rate for various percent. Is it important? Anyhow, you would be knowing, yes, it is important. You should know the slab rate. You should know कि individual HUF or it is firm किस पे क्या applicable है, that slab rate, so we should know. So ma'am, is it getting useful every time? So it is an A category. Ma'am, any independent question from this you will expect, obviously no. It will be coming with question का part of a question. It will always be part of question. So how you will write like this? इसमें तुम कैसे लिखोगे? जनरल का whatever section, suppose slab rates है, whatever it is जो section वहाँ लिखा है in the index, that you should write. It is A category and it will be part of question always. That means no independent question will be asked on this. Understood? How to write? So chapter लिख दिया, chapter के बाद यहाँ पे whatever are the sections that you have to copy. Copy करने के बाद you will write A, B, C, whatever is the category, and I will be telling the types of question you can expect from here. Sure. So now I will not switch the indexation. मैं सिर्फ dictate करते जाऊंगी. You have to write like this. किसी को इसमें कोई question है कि कैसे लिखना है? Is it clear? Yes, ma'am. Ma'am, just first is my tax rate. Tax rate, it is A category. Someone want to ask? Just 20 seconds, ma'am. Please go a bit slow for the initial phase, then you can pick up the speed. You have done this? Yes, I have done it. Sure. So let us start. Now, marginal relief. Again, is it important? I would say it is C category. But if it is asked, it would be asked as a part of question. Never ever you will find an independent question on marginal relief. Ma'am, should I practice any question for this marginal relief? Only example given in this book or any of your book. One example is more than sufficient. Ma'am, कहाँ पे ये part मिलेगा? Where I will find the part of this concept? Most probably it could be MAT. It could be what? MAT. In the MAT chapter, you will find कि MAT में भी marginal relief का concept is applicable. Ma'am, where
It could be even in MCQ. MAT or MCQ, that is it. That is, can I say my question number 1 could have this marginal relief if it is MAT or it is MCQ? Please write down. Done? See, ma'am, ye rebate for the individual. You also know individual pay. There might not be a possibility that specifically they are asking 87A. So it is a C category, and ma'am, when it is C category, just read it and learn it. You won't find any questions in the question bank regarding this. Just learn it. That is it. No question practice is required for that. Then, ma'am, what about BA? BA का ये all this provision that is related to BA. अब मैं एक common चीज इन सबके लिए तुमको बता रही हूँ, specifically when it is a domestic company. I am telling you the common thing for all this thing. 1, 2, ये. This all 3 sections are applicable to domestic company. ठीक है? अब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ उसको समझना कि all these 3 sections are applicable to a domestic company. That is, ma'am, 115BA, it is applicable to domestic company. BAA, this is also applicable to domestic company. Then my BAB, this is also applicable to domestic company. ये तीनों ही domestic company को applicable होते हैं. Ma'am, out of this, if you say कि particularly कुछ learn करना है तो क्या learn करना है? Particularly remember कौन सा ऐसा section है जिसमें MAT is applicable and MAT is not applicable. Suppose if I choose this section, क्या MAT का credit available होगा या MAT का credit will not be available? If I choose this section, would MAT credit be available or MAT credit will not be available? ठीक है, तो basically इसमें आपको कुछ ज़्यादा focus करना है to that point कि where MAT credit is lapsing or where my MAT credit will not lapse. क्यों? Because when you find question number 1 में they will give this is a domestic company and ma'am 90% it is domestic company का question only. 90% the question in your paper will be from a domestic company. So ma'am, domestic company के all the things they have given, everything they have given with relation to domestic company. Now the requirement of the question is calculate tax liability. Now the requirement of the question is calculation of tax liability. Ma'am, if I want to calculate the tax liability, I remember one thing. For the company, MAT ka concept is also applicable. For the company, because it is tax calculation, MAT ka concept is also applicable. So ma'am, MAT ka concept is applicable. So should I calculate all the provisions related to MAT? Wait. पहले check कर लो whether the company has chosen 115BAA or it has chosen BAB, because once a company chooses this, MAT credit is not available. So this is a hint for the rate also. Ki what is the rate at which tax will be calculated, as well as this is the hint whether you have to do the calculations of MAT or not. So basically, when you go to this sections, abhi tak pucha kya hai? This thing they have asked, and any of the paper you will pick, you will find this line. Last में तो तुमको मिलेगी 115BAB chosen, 115BAB not chosen. If they choose this, so MAT credit is not calculated. If they do not choose this, so yes, for the tax calculation, also do the calculation of MAT and accordingly calculate your tax liability. Understood? So this is going to be in your paper. ये हो सकता है. Any other question related to this? इससे related कहीं और question आ सकते हैं? You will find a chapter tax planning. In tax planning, they will say this is a domestic company. ठीक है?
Now domestic company if chooses normal provisions for payment of tax, and domestic company if chooses this BAA or BAB. What is more beneficial to the domestic company? That is, choose the option. What is more beneficial to the domestic company? तो इसका मतलब क्या है? When it comes to this sections, this section will have a part in your question, that is question number 1, and this section will again be in the form of a particular question, that is choose the best option for the company. So are you getting the types of question for this sections particularly? So here, when I say a type of question, if you have written 115 BAB, BAA, this is somewhere A category, B category, whatever you say, but you must remember this कि part of question भी है और इसका independent question you will find in text planning वाला chapter. So in my book also, in the text planning chapter, you will find the question related to this sections. Done? Ma'am, should we calculate MAT also if those questions were asked? If those questions were asked, no, you have to judge. If they have chosen BAB, so MAT credit will lapse. So once the MAT credit lapse, so how would you calculate now MAT? That is a hint. Here in tax liability calculation, MAT is not needed. So even if you are doing, that is a waste of your time. Understood? Yeah. I Yes, ma'am. Sure. Then, so have you written all these things? अब आते हैं इस पे मैम, again this BAC, this is YA category, अभी 2 अटेम्प्ट पहले का ही अमेंडमेंट है, तो might be chances कितने हैं? Chances are only 40 to 45% की any specific question will come from here, because जब ये अमेंडमेंट आया था उसी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ गया इसका, ठीक है? तो chances are less, but if this will be coming, it will be coming as an independent question. And now independent question MCQ भी हो सकता है, descriptive भी हो सकता है, तो chances are less, but independent question ही आता है इसका. और ये question कहाँ पे मिलेगा मैम? Again text planning. Again in the text planning chapter you will find question related to 115 BS. कि what is more beneficial for an individual? Understood? So what is more beneficial for an individual? अब individual के केस में भी ये याद रखना, is it applicable only to resident or non-resident? Is it वो age limit applicable है 115 BSc में या नहीं है? You have to remember that. And if a person chooses whatever I am going to tell you right now, it is an MCQ in your MCQ booklet. 115 BSc आप जब भी choose करते हो and you have dividend income, तो डिविडेंड इनकम का मैक्सिमम सरचार्ज कितना होता है? 15%. यू मस्ट नो कि इफ यू आर हैविंग डिविडेंड इनकम और योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111A 112A, तो योर सरचार्ज लिमिट मैक्सिमम इज 15%. बट इफ यू चूज 115 BAC, ये एप्लीकेबल नहीं होता. इन सच ए केस नॉर्मल सरचार्ज जो होता है ना, यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल सरचार्ज मैक्सिमम 15% फॉर डिविडेंड वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं. दिस इज अ मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट, क्योंकि जब वो कैलकुलेट करते हैं, इवन इन RTPA क्वेश्चन ऑन दिस हैज बीन आस्क्ड, इफ अ पर्सन हैज चोजन 115 BAC, तो सरचार्ज नॉर्मली कैलकुलेट होगा, वो मैक्सिमम 15% वाला क्लॉज अप्लाई नहीं करना. अंडरस्टूड? तो आर यू गेटिंग द हाइलाइटेड एरिया कहाँ फोकस करना है? डन? लिख लिया ये 115 BSc में, फोकस ऑन सरचार्ज, फोकस ऑन पर्सन, एंड इट वुड बी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, वेदर MCQ वेदर डिस्क्रिप्टिव. एज आई सेड दिस इज C कैटेगरी, नो यूज, बट इसमें छोटा सा अमेंडमेंट है, तो जस्ट रीड इट प्रॉपर्ली. Cooperative society, not much use, but read it properly. Done? Chalo. Now specifically coming, abhi capital gain pe I am not coming, because this is a chapter you will find कि होगा ही. Exam में you will find कि this chapter is there, तो पहले हमने ये pick किया. That means this chapter is my A category. I have to do this. Anyhow, I have to give importance to this chapter.
Coming to next chapter, मैम पीजीबीपी पीजीबीपी आता है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 प्लस एडजस्टमेंट्स किसके होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 प्लस एडजस्टमेंट पीजीबीपी के ही होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 always of domestic company and that will be having adjustments of PGBP. So quickly I am writing over here A category, B category. You just copy it down. Then I will dictate the types of question. We'll share this also. This PDF I will be sharing. Done? Sure. So basically, PGBP question number 1, always of PGBP. Always मतलब 100%. Always मतलब 100% that there will be adjustment related to PGBP in question number 1. अब हम question number 1 में क्या हो सकता है? 19% chance it would be for a domestic company.
मैम अगर नहीं हुआ डोमेस्टिक कंपनी तो आइदर LLP और इंडिविजुअल। अभी तक इसके अलावा कुछ भी नहीं आया क्वेश्चन नंबर 1। तो 90% चांस देन क्वेश्चन नंबर 1 आइदर रिलेटेड टू डोमेस्टिक कंपनी और LLP और इंडिविजुअल। अब वेट मैम, if it is LLP individual, always remember to link AMT if tax liability का question is there, because for the calculation of your tax liability, alternate minimum tax plays the vital role. And again, हम क्या बोले 115 BAB चूज किया या नहीं किया, ये लाइन आएगी क्या यहाँ पे कि whether 115 BAB chosen yes or no? Tell me. नो मैम, नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? इंडिविजुअल पे मैम 115 BAD अप्लाई होगा। Only for companies. एप्लीकेबल ही नहीं है ये वाली लाइन, तो सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए, बिकॉज दैट सेक्शंस आर एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। अंडरस्टूड? डन? अब मैम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सी पीजीबीपी में इंडिपेंडेंट तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। पीजीबीपी मतलब पूरा की पूरा पीजीबीपी, बट व्हाटएवर ए वी हैव डन, ए वाले क्या है, कॉमन एडजस्टमेंट दैट यू विल फाइंड। ऐसे एडजस्टमेंट है जो तुम्हें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके बिना पीजीबीपी का क्वेश्चन इज नॉट फ्रेम्ड। तो जो ए कैटेगरी है दैट इज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट। बट मैम ये जो ए प्लस प्लस किया है ये क्या है? ए प्लस प्लस मतलब तुमको भी पता है डेप्रिसिएशन का, इट इज नॉट इवन अ सिंगल अटेम्प्ट की कोई क्वेश्चन नहीं आया। ऑलवेज एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज देयर, चाहे वो माइन्यूट सा हो या फिर थोड़ा सा फ्लिपी हो, व्हाटएवर इट इज, बट द डेप्रिसिएशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन योर पीजीबीपी चैप्टर। मैम यहाँ पे व्हाट अबाउट दिस ए प्लस इंडिपेंडेंट क्वेश्चन यू विल फाइंड। यहाँ पे क्या मिलेगा? इंडिपेंडेंट क्वेश्चन यू विल फाइंड टी कॉफी रबर बिजनेस। और टी कॉफी रबर बिजनेस में एक जगह हमने क्या किया था, पेज नंबर 416, आई गेस इट वाज दैट 416, वहां पे एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल में क्या है, टी कॉफी रबर बिजनेस है तो बिजनेस इनकम कितनी होगी एंड एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ बिजनेस इनकम एग्रीकल्चर इनकम दैट यू विल फाइंड इन योर रूल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। कहाँ पे है वो रूल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वाला पार्ट? रूल 8 है मैम। वो रूल 8 है, ये रहा एग्रीकल्चर इनकम। दिस यू हैव टू लिंक विथ योर 33AB। ओके, तो यहाँ पे हमारा रूल आगे देख के रखा है, रूल 8, जो बताता है कि कितना परसेंटेज बिजनेस इनकम, कितना परसेंट योर एग्रीकल्चर इनकम। तो स्पेसिफिकली you won't find specific sections, specific question नहीं मिलेंगे इसके। इनके क्वेश्चन तो ऑब्वियसली तुम्हें भी पता है मिक्स मैच होके आते हैं, बट व्हाट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी लैंग्वेज इधर होनी चाहिए, लाइक दिस, ये वाला तुमको भी पता है मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल से कि टीडीएस नॉट डिडक्टेड, तो आई शुड नो द प्रॉपर लैंग्वेज ऑफ राइटिंग एटलीस्ट दिस सेक्शन। तो जो यहाँ पे ए कैटेगरी के सेक्शन है, फोकस देयर, वो चाहिए ही चाहिए। You have to write it कि वो as it is language तो कम से कम लिख के आ जाए, so that our presentation is better than others. Got that? You have written all these things. मैम यहाँ पे एक चीज ये क्या लिखी है, section 172, तो those who have done classes you must know this. याद आ रहा है कि we have done the calculation also कि अगर एक नॉन रेसिडेंट का कौन सा बिजनेस है, शिपिंग बिजनेस, तो शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, उसके साथ में सेक्शन 172 इज द रिकवरी मैकेनिज्म। रिकवरी मैकेनिज्म के साथ ही ये सेक्शन आता है, और इसका एक क्वेश्चन यू विल फाइंड इन क्वेश्चन बैंक, बट वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट वी हैव डन ट्रिकी क्वेश्चन इन द क्लास आल्सो। याद आ रहा है? तो मैम can you repeat it, can you repeat it once? I had a disconnection in internet. wait, 44B is related to shipping business for a non resident. Always you have to do section 172 with that, because if this question is coming, it will not come without section 172, and that is your recovery mechanism in case of shipping business of a non-resident. आएगा ही आएगा. Now in the question bank only one question has been given, but in the class we have done little bit difficult question for that. ठीक है? Done with PGBP marking specifically because इसके type of question कुछ नहीं है.
जहां पे स्पेसिफिक क्वेश्चन था ऑलरेडी हमने क्या मार्क कर दिया, दैट वाज टी कॉफी रबर बिजनेस, जिसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब मैम ये सारे के सारे प्रोविजन इज रिलेटेड टू पीजीबीपी। सुनो मेरी बात, अब मैम दिस ऑल द प्रोविजंस आर रिलेटेड टू पीजीबीपी। अब एक चीज बताओ, क्या बताऊं मैम, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी तो पीजीबीपी में हो सकता है, वो भी तो बिजनेस करेगा, इंडिविजुअल भी बिजनेस कर सकता है मैम, इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर्म भी बिजनेस कर सकता है, एओपी भी हो सकता है, बीओ। अच्छा, यू आर ट्राइंग टू से पीजीबीपी कैन बी मर्ज्ड विद डोमेस्टिक कंपनी, क्वेश्चन नंबर 1, and any of this section could be merged with various entity. अब सपोज करो पीजीबीपी का क्वेश्चन विद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो वेरियस एंटिटी भी मर्ज हो गया ना, गेटिंग दैट? नाउ द वेरियस एंटिटीज मर्ज। मैम एक मिनट, एलएलपी पीजीबीपी के प्रोविजन एंड दे वांट टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन। अच्छा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी तो आएगा सर, और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स हमने पढ़ा है कब कब आता है, if you have section 10AA or you have 35AD in that, or you have got 10AA, 35AD or 80IA to 80 RRB का any deduction except 80P, याद आता है? तो ये क्या है, कंसाइज लिंकेज की ये आया तो मुझे एएमटी भी लगाना है, मुझे एलएलपी का वो वेरियस एंटिटी भी दिया है और ये पीजीबीपी के प्रोविजंस दिए हुए, बिकॉज एलएलपी पीजीबीपी के रिस्पेक्ट में आई हैव टू कैलकुलेट। मैम और एक चीज बता दो, कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं सिर्फ बता पा रही हूँ, पूरा समझा नहीं पाऊंगी अभी, बट एक चीज और बताओ, सपोज इट इज इंडिविजुअल, मैम इंडिविजुअल का पीजीबीपी इनकम गिवन है, मैम इंडिविजुअल का पीजीबीपी इनकम गिवन है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, एंड दे आर सेइंग व्हिच ऑप्शन इज बेटर, 115 बीएससी और नॉर्मल, समझ रहे हो? तो मैम इंडिविजुअल पीजीबीपी गिवन, तो सबसे पहले तो वी हैव टू कैलकुलेट द ऑप्शन, तो ये मैम ये टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन है, दैट इज हैविंग पीजीबीपी आल्सो, दैट इज गिविंग मी द डायरेक्शन, बीएससी चाहिए कि नॉर्मल चाहिए उसके लिए। एंड मैम व्हेन इट इज टैक्स लायबिलिटी एंड इट इज हैविंग सपोज 10AA सेक्शन, सपोज सिर्फ 10AA सेक्शन है, तो मैम ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी तो आएगा इसमें कैलकुलेशन के लिए। आर यू गेटिंग दैट? और मैम ये चेक करना पड़ेगा बीएससी में शुड आई अप्लाई अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और नॉट, व्हाइल कैलकुलेटिंग बीएससी का ऑप्शन, वहां अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगेगा भी या नहीं लगेगा? तो आर यू गेटिंग द लिंकेज कैसे चलता है? तो कहना है से डीटी इज ऑल अबाउट लिंकेज, बट वो आईडीटी वाली वर्ड टू वर्ड लिंकेज नहीं है यहाँ पे, आईडीटी हैज अ वर्ड टू वर्ड लिंकेज बट डीटी हैज चैप्टर वाइज मिक्स कर दिया, और लो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। तो मैम अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे समझेंगे? नाउ व्हेन यू विल डू क्वेश्चन यू विल रियलाइज 10AA गिवन मतलब एससीजेड, इंडिविजुअल गिवन मतलब वेरियस एंटिटी, टैक्स लायबिलिटी एंड देयर इज एएमटी का कैलकुलेशन हो गया ना, 3 चैप्टर्स मर्ज। तो नाउ ट्राई टू एनालाइज योर क्वेश्चन बैंक लाइक दैट कि क्या क्या टॉपिक्स दे हैव मर्ज टुगेदर, ठीक है? डन? सो व्हेन इट इज पॉसिबल, ऑब्वियसली रिवीजन में ज्यादा पॉसिबल होगा, फर्स्ट टाइम अगर रट रहे हो तब नहीं होता, रिवीजन में यू नो द प्रोविजंस, नाउ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू डू दिस एनालिसिस एंड मेक द एडजस्टमेंट शीट प्रॉपर्ली कि क्या क्या बार बार रिपीटेड कॉम्बिनेशन है इनके, ठीक है? चलो, सो डन विद द पीजीबीपी, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऑफ एंटायर पीजीबीपी चैप्टर, नो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ कोई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है? नाउ इसके बाद हम पीजीबीपी के बाद मुझे कभी कुछ स्टार्ट करना है तो नो डाउट वेरियस एंटिटी, पीजीबीपी के बाद कुछ और स्टार्ट नहीं होता, इट इज ऑलवेज वेरियस एंटिटी। मैम आईसीडीएस टाइम है तो करना, टाइम नहीं है तो नहीं करना, क्लियर नोटिफिकेशन फॉर यू। इफ यू थिंक कि आईसीडीएस में बहुत कुछ होने वाला है, आईसीडीएस का आई एम गोइंग टू गिव यू, प्लीज एक रिमाइंडर मुझे जरूर दे देना, इफ आई फॉरगॉट अ चार्ट फॉर द आईसीडीएस आई विल गिव यू, उतना ही पढ़ लेना बस, पढ़ना है तो, क्योंकि यू नो ये अकाउंटिंग पॉलिसी ये सब तुम ऑलरेडी कहाँ पढ़ रहे हो ना, इंडिया सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा छोटा छोटा है, वहां बहुत लेंदी है, यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ में चीजें खत्म हो जाती है, ठीक है? अब हम वेरियस एंटिटी कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा वेरियस एंटिटी, खत्म होता है क्या? कैसे होगा इतनी जल्दी खत्म? यहाँ तक खत्म होता है। हम वेरियस एंटिटी में क्या इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट
अगर कुछ और छूट जाए बट ये नहीं छूटना चाहिए। कौन सा टॉपिक होगा वेरियस एंटिटी का कि सब छूट जाए बस ये ना छूट पाए? तो आई वुड से ट्रस्ट। ए प्लस 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 कर लो। क्यों? एवरी अटेम्प्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड, एवरी अटेम्प्ट, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है इसका। और मैम इसमें भी कोई चीज जिसकी लैंग्वेज सब प्रॉपर हो, कैलकुलेशन शुड बी प्रॉपर बेसिकली, तो याद है ना तुम्हारा ये एवरीवेयर यू विल फाइंड एन एनोनिमस डोनेशन, मिलता ही है हर क्वेश्चन में, देयर इज एन एनोनिमस डोनेशन का टॉपिक, तो वो तो तुमको करना ही। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या कि यही आएगा वही आएगा? तो इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन। ये दो चीजें ट्रिकी होती है इसमें, एनोमिनस एज वेल एज कैपिटल गेन का कैलकुलेशन। ऑल्दो तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, देयर इज नो पार्ट्स, इसका कोई पार्ट कहीं नहीं आता, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। मैम इसके मार्क्स कितने हो सकते हैं? ये अकेला टॉपिक 8 to 10 मार्क्स पे लैंड करता है, ठीक है। अब मैम इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आ जाए, अब आ जाते इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी आएगा, ठीक है। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ एग्जिट टैक्स, मतलब if in one attempt it is tax liability of a normal trust, then second attempt it will be exit tax calculation. And third, और क्या हो सकता है? Case study. For this you should open your July 21 का पेपर कि types of case study कैसी होती है। तो July 21 में they have made case study, उन्होंने इसका practical question ही नहीं दिया, case study दे दी। मतलब any case either क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कोई भी हो सकता है, या फिर कई बार क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा, बट समवेयर यू विल फाइंड चैरिटेबल ट्रस्ट, मिलेगा ही मिलेगा। डन। सो अपने आप में ये कौन से कैटेगरी का है टॉपिक? ए कैटेगरी। और उसमें भी फोकस किसको मुझे ज्यादा करना है? एज आई टोल्ड, ये वाली चीज, ये वाली चीज। मैम रिपीटेड एडजस्टमेंट बोल सकते हो क्या? इसके रिपीटेड एडजस्टमेंट क्या है? रिपीटेड एडजस्टमेंट में आएगा रीपेमेंट ऑफ लोन वाला टॉपिक, कि मैम लोन पे आई हैव एक्वायर्ड द असेट, तो व्हेन यू हैव एक्वायर्ड द असेट ऑन लोन, तो वो रीपेमेंट बेसिस पे ही इट इज डीम्ड एज अप्लाइड। तो लोन वाला जो पार्ट है, तो एडजस्टमेंट कौन सा है? लोन वाला, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैम इसके अलावा कौन सा रिपीटेड वर्ड हमको दिखता है? कॉर्पस डोनेशन। मैम और क्या दिखता है? दे विल से कि ट्रस्ट फॉलो कैश बेसिस अकाउंटिंग, मतलब अक्रूवल वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, समथिंग यू हैव नॉट रिसीव्ड यू विल नॉट गेट, तो वो बेसिस बताएगा वेदर इट फॉलोज कैश बेसिस और इट फॉलोज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडरस्टूड? मैम और क्या हो सकता है? लोन हो गया, कॉर्पस डोनेशन हो गया, कैश हो गया। बहुत बार वो पता है क्या देंगे, बहुत बार मतलब मोस्ट कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अरे देते ही हैं। दोज हु हैव डन चैरिटेबल ट्रस्ट उनको पता चल रहा होगा, यही तो घूम घूम के यही देता रहता है। अंडरस्टूड? फिर मैंने वो देखा ना, टोटल डोनेशन रिसीव्ड इन कैश, अरे कहाँ लिखा है कि यू शुड रिसीव इन चेक? लिखा है क्या कहीं? मिलने दो कैश में, नो डाउट, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैम टोटल डोनेशन is 10 lakh, out of which 3 lakh is anonymous donation received in cash. अरे anonymous भी कैश में मिल सकता है, किसने बोला कोई दिक्कत है? तो दिस इज द टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट देंगे। टोटल डोनेशन ऐसे रिसीव हुआ, वैसे रिसीव हुआ, डजंट मैटर, डोनेशन मिलना चाहिए, ठीक है। मैम फिर आई हैव परचेज समथिंग एंड 15,000 गिवन इन कैश, तो रिमेंबर यहाँ पे भी कौन सा कॉन्सेप्ट है? 10,000 सिंगल डे, सिंगल पर्सन, सिंगल ट्रांजेक्शन डिसअलाउड, 40A3। आर यू गेटिंग? तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स ही कौन से हैं जो रिपीटेड है इसमें। तो व्हाट यू शुड डू व्हेन यू डू द एवरी क्वेश्चन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वो हर क्वेश्चन में एक नया एडजस्टमेंट जो है ना, सिर्फ वो हाईलाइट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड में फिर रिपीटेड है, एक नई चीज है, जस्ट हाईलाइट दैट। थर्ड में सब रिपीटेड है, कुछ दो चीजें नहीं है, वो हाईलाइट कर दो, ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड दिस योर एडजस्टमेंट। इसमें टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट क्या है? अंडरस्टूड? डन। मैम इसके बाद ये रहा, ये दोनों है ना एक्रीटिव,
1 attempt exit text, 1 attempt it is this. फिर इसके बाद मैम कुछ अगर इम्पोर्टेंट लगता है तो क्या होगा? नो डाउट मैथ AMT, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऑफ मैथ इज पॉसिबल, बट इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऑफ AMT नहीं आता. LLP के साथ, इसके साथ, कॉम्बिनेशन के साथ ही इट इज ऑलवेज देयर. आई एम म्यूटिंग एवरीवन. ओके, व्हेन यू वांट टू आस्क यू रेज योर हैंड. तो मैम इसके बाद ये, और इसके बाद ये हो गया तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट. मतलब आई एम टेलिंग यू द क्रोनोलॉजी ऑफ योर वेरियस एंटिटी आल्सो. सबसे पहला तो ये होगा. सेकंड वी विल स्टार्ट विद दिस टू. थर्ड वी विल स्टार्ट विद दिस. फोर्थ ये. उसके बाद जो बचा है ये रहा तुम्हारा फॉर्म वाला. उसके बाद स्टार्ट करो. मतलब पहली प्रायोरिटी तुम्हारी क्या होनी चाहिए? ये लिखिए. ये भी तुम्हारी पहली प्रायोरिटी चैरिटेबल ट्रस्ट, फिर तुम्हारा मैट AMT, फिर तुम्हारा AOPPY, देन तुम्हारा बिजनेस ट्रस्ट, और फोर्थ नंबर पे ही LLP फॉर्म. मैम LLP फॉर्म का कोई इंपॉर्टेंट जो कहीं पे भी मिल सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट. PGBP में भी आता है कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन अलाउड. PGBP व्हेन यू विल डू ना, यू विल रियलाइज कि ये आता ही आता है, हर जगह मिलेगा. So even if it is LLP, partners को if you are paying, this is the common adjustment they will ask. Calculation of remuneration. अब हम calculation of remuneration से related ये चीज मैं बता चुकी हूँ. Calculation of remuneration में वो क्या बोलते हैं कि first 3 लाख पे कितना परसेंट था? 90%. 90%. 1 lakh something higher. 1,50,000. You mean whichever of is book higher. profits, ma'am? Here should I write 60%? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब गलती क्या होती है कि मैम सपोज मैं ऐसे फिगर लेके नहीं बता पाऊंगी अभी. मैम ये x है, ये x क्या है? सपोज इतना रेम्यूनरेशन यू हैव गिवन. तो मैंने कैलकुलेट किया कि रेम्यूनरेशन एक्चुअल में कितना होना चाहिए. दिस इज माय बेंचमार्क ना. दिस शुड बी द रेम्यूनरेशन आई शुड गिव. ये मेरा बेंचमार्क है. तो मैम दिस इज आई हैव गिवन, दिस आई शुड गिव. और मैम आई शुड गिव आ रहा है, सपोज ये 10 लाख मैंने दिया, आई शुड गिव आ रहा है 11 लाख. तो अरे 11 लाख अलाउ करोगे क्या डिडक्शन? तो मैम 10 lakh ही देंगे. You have to check given or benchmark whichever is Lower. और ये भूल जाते हैं. This is the common mistake. You will forget this. कि जैसे ही कैलकुलेट करते हैं धनाधन 11 लाख डिडक्शन अलाउ. अरे ये तो देखो एक्चुअल गिवन कितना है. That is only a benchmark कितना अलाउड है. Understood? तो फोकस 40B में ये चीज को फोकस करना. Done? Done? So हम इन्वेस्टमेंट फंड में किस चीज कहाँ पे थे हम लोग? LLP. मैम Yes. ट्रस्ट में आपने जो पॉइंट्स बताए हैं, व्हाट वाज द लास्ट वन वेयर यू हैव रिटन 10 lakhs एंड समथिंग? Like total Decided. deduction include your overall total deduction include anonymous donation of 3 lakh that is received in cash. ओके. कोई मतलब ही नहीं ना डोनेशन कैसे भी मिले. ठीक है. Ma'am, but if it is given in the cash, should we link with 269S? ट्रस्ट को अलाउड है. You cannot do that. Even if greater than 2 lakhs also? हाँ, you cannot do that. ठीक है. चलो. तो स्पेसिफिकली इफ आई कम टू ये लाइन वाइज बता रही हूँ. एमलगमेशन डीमर्जर छोटा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब यू हैव टू डू दिस. इसका आई कैन टेल कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है. एमलगमेशन डीमर्जर यू हैव टू डू. इस वक्त के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? ये अमेंडमेंट है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. बोनस स्ट्रिपिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट. अमलगमेशन एंड डीमर्जर मैम क्या बताया आपने? कैटेगरी मैम ये कैटेगरी? ए कैटेगरी भी कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो कभी भी अभी तक आया नहीं है. बट चांसेस हो सकते हैं, तो उसका मैं कैटेगरी डिसाइड नहीं कर सकती. बट यस, इसका करने का है. बी रखते उसको. आई कांट जज द कैटेगरी फॉर दिस. ठीक है. बट ए कैटेगरी फॉर दिस व्हाई? अमेंडमेंट है इसके अंदर. ठीक है मैम. डिविडेंड का भी एक कैटेगरी, क्योंकि वी हैव डन लिंकेज वाइज डिविडेंड इन द क्लास. ओवरऑल किधर किधर लिंक होता है. एंड 115BB करके एक सेक्शन था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा. क्लास में यू विल फाइंड कि वी हैव डन
बट अमेंडमेंट आ गया, तो अब याद रखना ये चीज कि 115BBD इज नॉट देयर इन योर सिलेबस क्योंकि वो इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है, ठीक है, दैट यू शुड नोटिस। मैम Ma'am, लिक्विडेशन can you repeat it again for taxation of dividend and deemed dividend? 115BBD section is not there. It has been removed. Okay. That now, Yeah, thank you. ma'am, related to liquidation, do this liquidation wala part with capital gain. And is it important? Yes. A category. Ma'am, buyback, A category. Political party, electoral trust, C category. मैम सी कैटेगरी छोड़ देंगे क्या? अरे गलती नहीं करना, डोंट प्रैक्टिस क्वेश्चन इफ यू डोंट हैव टाइम, बट लर्न द प्रोविजंस प्रॉपर्ली। सी कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता कि छोड़ दो, प्रोविजंस लर्न करो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही तो यू कैन लीव, क्योंकि प्रोविजन आता है तो यू कैन कैलकुलेट दैट। ओके, चलो, एज आई टोल्ड दिस, ये भी इंपॉर्टेंट मैंने बताया, इसका क्रोनोलॉजी आई हैव टोल्ड कि ये करके जाना है, ठीक है। अभी आते हैं हम डायरेक्टली, मैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सी कैटेगरी, ए कैटेगरी। हम डिडक्शंस में कौन सा डिडक्शन बार बार पूछते हैं, तो आई एम हाइलाइटिंग दैट एटीसी इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट, फोकस ओनली ऑन एटीसी, देन अगेन फोकस ऑन एटीडी। मैम एटीडी सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर में यूज होगा? देन इसके अलावा कुछ अगर इम्पोर्टेंट है, सीसीडी छोटा मोटा कभी आ सकता है, देन this one, बस बेसिक कैलकुलेशन इसके याद रखना, रीडिंग करनी है सब करो, बट these are the sections that I have highlighted, these are part of question, इसको ज्यादा वो पूछते हैं, तो दिस इज समथिंग उसको नहीं छोड़ना, किसी भी केस में इन सेक्शंस को नहीं छोड़ना। बाकी मैम ये वाले जो होते हैं छोड़ दो, नई टाइम में मत करो, नहीं पूछते, अभी तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, 5 अटेम्प्ट में देख रही हूँ नहीं आ रहा है, बट ये वाले भूलना भी नहीं, समझ रहे हो, जो कुछ है वो है, उसको भूलने का नहीं, ठीक है। ये सबमिट टेबल के लिए क्या कहा मैम आपने? which one? ATIA If you have time, do this. Otherwise, leave that. क्योंकि ये मैट के अंदर जो ATIA, RRB, ATB वो वाले मैम? मैट नहीं, वो AMT है, AMT में वो डायरेक्टली देंगे, दिस सेक्शन डिडक्शन है ऐसा, वो तुमसे डिटेल नहीं पूछेगा उसमें, जब तुम्हारा मैट आता है ना तो वो डायरेक्टली दे देता है, ATIA का इतना डिडक्शन लिया, हो गया, पता चल गया कि AMT लगना है। So you're telling that if question is asked in AMT, this will be directly given, is it, ma'am? Yes, yes. What you should do for being on a safer side, learn the name only. इस सेक्शन का कौन सा नाम है? For being safer side. कि मुझे नहीं दिया कभी सेक्शन और वो डिटेल दे दी, तो I will know ना, क्या रे ये नेम I know. Understood? That? So we have done this. PGBP we have done. आ जाओ सबसे पहले TDS, तो you also know कि TDS always 8 marks. TDS हमेशा ही 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आता रहेगा। तो मैम एडवांस टैक्स ओनली ऊपर से जितना जरूरी है उतना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आते हैं एडवांस टैक्स बी कैटेगरी। मैम ये A++, क्योंकि अभी अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट आया ना, because of updated return you will find कि you have to use this. So this is A category. मैम TDS TCS से रिलेटेड, TDS TCS तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है,
समझ पा रहे हो? हमेशा आइदर क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 मिल जाएगा छपा हुआ TDS एंड TCS ही है। मैम TDS TCS में लिखना कैसे? प्रेजेंटेशन टिप already I have sent an audio, again I will send an audio. What should be written in your TDS TCS, so 4 out of 4 you will get. ठीक है? read तो ये यूज होता है, ये यूज भी नहीं होने वाला। इवन 1% क्वेश्चन यू विल फाइंड कि ये यूज होता है, अदरवाइज यूज भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आई शुड नो बहुत अच्छे से, इसको अच्छे से रीडिंग करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी पर्टिकुलरली चलेगा, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज। ये वाला क्या है? पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके, मैम टनेज सी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ए कैटेगरी, सेम क्वेश्चन आज ऑलवेज, बस चेंज क्या करते हैं? नेम। एक्स लिमिटेड कंपनी भी है तो वाई लिमिटेड हो जाती है। क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है दैट इज, बस यहाँ पे व्हेन सेम क्वेश्चन आर आस्क्ड, प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, यूज ऑफ प्रॉपर वर्डिंग इज इम्पोर्टेंट। डन। अब मैम ये वो मिस रिपोर्टिंग पेनल्टी वी हैव डन, under reporting we have done, mute yourself, that is important, वो आता है। मैम ये सब क्या है? read if you have time, तभी रीड करना जब टाइम परमिट करे। Ma'am, taxation of ESOPs. डन, इतना हो गया ना? ये भी, ये जज कर लिया, ये जज कर लिया, ये भी हो गया। ऑल दिस वी हैव हाइलाइटेड, ये सब खत्म हो गया। नाउ मैम व्हाट अबाउट दिस टैक्सेशन ऑफ ESOP? क्वेश्चंस अभी तक बहुत ज्यादा नहीं है, बट आई कैन एक्सपेक्ट कि शायद कभी आ जाए। छोटे से टॉपिक को इनको लेने की आदत है, तो फॉर दैट रीजन वी विल गिव ए कैटेगरी टू टैक्सेशन ऑफ ESOP। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, सी कैटेगरी। अब अपील्स एंड रिविजन में नो डाउट दिस इज इंपॉर्टेंट, no doubt this is important, no doubt this is important, this is important. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दो कि ठीक है, बट मैम रिमेम्बर वन थिंग कि जब मैम अपील होती है ना, व्हेन इट इज अपील, इट इज CIT ऑफ अपील को अपील होती है। बट मैम व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिविजन इज देयर, तब हम लिखते नहीं है CIT ऑफ अपील, तब सिर्फ CIT होता है, बिकॉज ये इनकम टैक्स अथॉरिटी है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जाके रिवीजन ऑफ माय ऑर्डर करवा रहे हैं। यहाँ पे अपील हो रही है तो अपील इज टू द अपीलेट वाला पार्ट। तो ये मिक्स मत कर देना कभी भी कि दैट यू आर राइटिंग हियर CIT ऑफ अपील और इधर कर दिया CIT, एक्सचेंज मत करके आना, कहीं पे भी CIT और कहीं पे भी CIT ऑफ अपील यूज नहीं हो जाता। अंडरस्टूड? मैम क्या असेसमेंट प्रोसीजर आता है? यस, 8 मार्क्स, ऑलवेज असेसमेंट प्रोसीजर 8 to 12 मार्क्स। तो वेदर इट इज दिस, ये पूरा ही तो असेसमेंट प्रोसीजर है, ये पूरा की पूरा क्या है? एंटायर असेसमेंट प्रोसीजर। बट अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेटेड रिटर्न, ये रहा। अपडेटेड रिटर्न का वीडियो यू विल फाइंड आई हैव गिवन ऑन YouTube, लिंक वेर आल्सो गिवन। तो ये अपडेटेड रिटर्न अमेंडेड है, इट इज इंपॉर्टेंट। देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? स्क्रूटनी,
मैम इनके क्वेश्चन नए फ्रेम होते हैं क्या? इसके भी क्वेश्चन जनरली फ्रॉम केस स्टडी, जो केस स्टडी आई है ना जनरली उसी से होते हैं, और क्वेश्चन बैंक जनरली इसके न्यू नहीं होते, क्योंकि जिन्होंने क्लास की उनको समझ में आया होगा ये बहुत भयंकर चैप्टर है, इट इज हैविंग लॉट्स ऑफ लिंकेज. So पूरा assessment procedure again on YouTube. If you want to go into the depth and want to know कि actual assessment procedure क्या होता है, so go on YouTube and do that. ठीक है? क्या ये A category है? No doubt it is A category because 8 to 12 marks always. So yes, it is A category, but for this time specific focus इस पे रखना because it is amendment, और ये तो हमेशा से ही needed है. And your 147. इनकम एस्केपिंग. मैम शुड आई डू फेसलेस असेसमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं, ऑलरेडी जिस अटेम्प्ट में आया था जुलाई 21 आएंगे तो फेसलेस असेसमेंट पूछ चुके हैं, तो इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट अ प्रोसीजर. वो सिर्फ एक प्रोसीजर है. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस मोर, सर्वे दिस मोर, रेक्टिफिकेशन दिस. तो जो इंपॉर्टेंट है वही है. ओवरऑल तो एंटायर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. और मैम टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऑलवेज केस स्टडी. ठीक है, ओवरऑल चैप्टर ऑलवेज केस स्टडी. तो मैम क्रोनोलॉजिकली बोले तो आप ये बोल रहे हो कि फर्स्ट यू शुड स्टार्ट विथ रेट. यस. Second, I should go with PGBP. Third, I should go with, अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है प्लानर के अकॉर्डिंग उनको अलग से दिया, इंडिविजुअल प्लानर है उनका अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से. बट इफ यू हैव नॉट टेकन द प्लानर, रेट PGBP, और जो टेस्ट सीरीज भी नहीं दे रहे उनके लिए रेट PGBP, देन गो टू योर वेरियस एंटिटी, देन वेरियस एंटिटी के बाद TDS PCS, फिर मेरा डायरेक्ट आएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन, फिर आएगा मेरा असेसमेंट प्रोसीजर. ये तो तुम्हारा बोलते हैं ना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट यही होना चाहिए. और ये अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है फिर उसके बाद आता है पेनाल्टी, देन इट इज गार्ड. इतना भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, श्योर यू आर गोइंग टू पास इन दैट DT टॉपिक, DT सब्जेक्ट में पास हो जाओ. ओके चलो, अब जो बचा कुचा है इसका मतलब क्या है? लिया ही क्यों लास्ट में? क्योंकि वो एक्चुअल में एलिमेंट्री है. तो बचे कुचे पे जाते हैं हम. मैम ये वैल्यूएशन रूल्स एंड टेक्स्ट ऑफ वीडियो, इसका आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन. सेम वीडियो आई हैव अपलोडेड ऑन YouTube फॉर दिस आल्सो. Text of virtual digital asset, they will give a question on this. Latest inclusion of the chapter is there. So inclusion है तो ये important है, तो again it comes for A category. मैम वैल्यूएशन रूल टफ है क्या? टफ नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है. इफ यू नो एग्जिट टैक्स के वैल्यूएशन रूल प्रॉपरली तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे कहाँ पे आ जाएंगे? एग्जिट टैक्स ऑफ ट्रस्ट, उसी के कहीं ना कहीं वैल्यूएशन रूल सेम ही है. Then coming to last, यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है? इससे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट? यही 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 और ये. This two in your various entity, that is gift वाला provision, और ये डिडक्शन. मैम ये छूट जाए तो काम का नहीं है, करना सब कुछ है. C कैटेगरी इसके अंदर ये दो सेक्शन, बट दिस आर A, क्योंकि ये क्वेश्चंस में होते हैं. यू विल फाइंड कि दिस आर यूज्ड इन योर PGBP के क्वेश्चंस आल्सो. मैम व्हाट अबाउट कैपिटल गेन? ये लास्ट पार्ट, कैपिटल गेन का ये जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चंस जनरली इनसे फ्रेम होते हैं.
मतलब रेट दे यूज ना, रेट जहां जहां यूज करना तो वो ये रेट को देते हैं। तो फोकस ऑन दिस लास्ट पार्ट मैम, एग्जामिशन वगैरह नहीं, फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन दिस। मैम ये बी कैटेगरी डन। अभी ये क्यों एक साथ बता दिया, बिकॉज कौन कब क्या कर रहा है आई डोंट नो, एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज आल्सो डन द क्लास। अब वो क्या रिवाइज कर रहे क्या नहीं कर रहे आई डोंट नो, तो इट वुड बी बेटर कि यू शुड हैव एन ओवरऑल आइडिया कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़ना है। रिवीजन जब तुम कर रहे हो तो पहला रिवीजन इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन में यू विल फाइंड कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कन्वर्जन है, ट्रांजिशन रिलेटेड है, नहीं काम के। मैम बीपीएस है, नहीं है काम का, बिकॉज इट इज ओनली 30-40% चांस टू लास्ट के कन्वेंशनल मॉडर्न कन्वेंशनल के क्वेश्चन है। 30-40% चांस, वो भी मैक्सिमम 5 मार्क्स के लिए। तो मेरे पास ऑलरेडी मैक्सिमम मार्क्स कवर करने के लिए टॉपिक्स हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग A++ कैटेगरी। डीटीडब्ल्यूए में यू नो, डीटीडब्ल्यूए का वॉच द रिवीजन वीडियो, उसमें सारे एडजस्टमेंट आई हैव टोल्ड कि क्या क्या एडजस्टमेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और वही सब कट कॉपी पेस्ट तुमको क्वेश्चन में मिलता है। ठीक है, तो डीटीडब्ल्यूए इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट, इक्विलाइजेशन लेवी, ये 3 ज्यादा ए कैटेगरी। ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटीडब्ल्यूए, इक्विलाइजेशन। हम इक्विलाइजेशन में भी क्या इंपॉर्टेंट बोलोगे, 165A ई कॉमर्स ऑपरेटर। अंडरस्टूड। फिर इसके बाद बचा क्या, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, जीडीआर के प्रोविजन, एनआरआई के प्रोविजन बाद के हो गए। बेसिक मुझे मेन पता है। मैम स्पेशल रेट ऑफ टैक्स क्या करे, वो चार्ट दिया है ना, उसमें ही सब कुछ इंक्लूड करे, सारी चीजें उसके अंदर। वो चार्ट तुम्हारे पास खुद लर्न करके टेबल के सामने लगा देना। अंडरस्टूड। तो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू कि डीटीवी इतना वास्ट नहीं है, बट फोकस एरिया यू शुड नो कि ये ग्रिप वाले एरिया। ठीक है। हाँ मैम, आपने अभी कौन से चार्ट की बात की? चार्ट ऑफ विच सेक्शन? जिसपे तुमने थम्स अप भी किया है। स्पेशल रेट एनआर के अंदर जो पीछे पीछे है हाँ, रॉयल वो चार्ट। यस। नाउ आईसीडीएस आई हैव टू गिव यू, ठीक है, आईसीडीएस का चार्ट। एंड सेकंड व्हाट आई हैव टू गिव यू, अगेन आई हैव टू शेयर द ऑडियो नोट फॉर प्रेजेंटेशन टिप्स ऑफ टीडीएस टीसीएस। ठीक है, ऑल द मैम एनआर टैक्सेशन का और थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, बिकॉज़ इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, बहुत सारी कंडीशंस है उसमें। ए कैटेगरी सबसे ज्यादा है सेक्शन नंबर 9। उस सेक्शन नंबर 9 में भी रॉयल्टी इज इम्पोर्टेंट, इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो एनआर टैक्सेशन में गो टू सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 के अंदर फोकस ऑन इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी मोर, एंड देन बिजनेस कनेक्शन। ठीक है मैम, सेक्शन नंबर 9 डन। मैम एनआर टैक्सेशन इज रेसिडेंशियल स्टेटस, पोयम वाला कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो मैम रेसिडेंशियल स्टेटस डन। रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ दोज हु हैव गिवन द टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, ऑलमोस्ट एवरीवन वुड हैव गिवन। तुमने देखा है वो सजेस्टेड आंसर में ऐसे मैंने 1 मार्क लिखे, दोज हु हैव नॉट रिटन स्कोप ऑफ इनकम। जब तुम रेसिडेंशियल स्टेटस लिखते हो उसके साथ देखना सजेस्टेड में लिखा हुआ स्कोप ऑफ इनकम भी है, वो सेक्शन लिखना होता है। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 दोनों साथ में आते हैं इफ यू हैव गिवन द टेस्ट। तो वो 1 मार्क्स था तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का, 1 मार्क वाज फॉर द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। पहले थ्योरी उसकी लिखनी पड़ेगी, प्रोविजन यू हैव टू राइट। तो वो स्टेप वाइज मार्किंग, जब हम बोलते हैं ना कि स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है क्या डीटी में, स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब ये होता है, वो पुराने जमाने का नहीं कि थोड़ा बहुत गलत हुआ तो चलेगा, नहीं, दिस इज द स्टेप वाइज मार्किंग। अंडरस्टूड। ठीक है, आई होप तुमने लिया वो सजेस्टेड। मैम अभी अटेम्प्ट नहीं किया, कल है मेरा टेस्ट। हाँ कल है, ठीक है, तो तुम कल के बाद वो विकेता मैम को बोलना कि चेक्ड वाले जो मैं भेजती हूँ उनको, वो वाला इसमें मार्किंग है स्टेप वाइज। या मैम 3 आईडीटी का मैम ने सेंड किया था, तो वो मैंने देखा है। जितने भी टेस्ट है सबके हैं, उनको देख के रखे, तुम सारे के ले सकते हो टेस्ट देने के बाद।
हाँ मैम, वन मोर थिंग, असेसमेंट प्रोसीजर में आपने बोला कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो कैन वी डू कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कर लूं मैं? क्वेश्चन बैंक एंड केस लॉ। हाँ मैम, केस लॉस टू, जो इंस्टीट्यूट का वो नहीं आता है सप्लीमेंट्री, जो केस लॉ वाली होती है, उसमें से कुछ आता है क्या? देखो कुछ आता है क्या तो लाइक स्कोप फ्रॉम ओल्ड कोर्स हैज बीन रिड्यूस ना, पहले तो 8 मार्क्स का केस लॉ का पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता था। नहीं, वो नहीं आता, बट केस लॉ कैसे, वो केस लॉ लिखने को नहीं आते, वो जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना, उसके जो फैक्ट्स होते हैं वो मैच करते हैं केस लॉ से। तो तुमको बस केस लॉ नहीं लिखना है, तुमको सिर्फ केस लॉ का नाम कोट करना है और फिर अपना आंसर असेसमेंट प्रोसीजर की तरह ही लिखना है। तो 4 मार्क्स का ही होता है, एक ही क्वेश्चन आता है ऐसा। एंड असेसमेंट प्रोसीजर का ओनली क्वेश्चन बैंक वी कैन डू। वही ओनली क्वेश्चन बैंक को, बट ऐसा नहीं कि तुम्हें फ्लो तो एक बार पता होना चाहिए ना, नहीं तो हाँ, दैट टू, मतलब एक बार प्रोविजंस अगर हो गए देन वी कैन रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस ओनली ना, दैट विल बी अब इनफ। प्रोविजन मुझे नहीं पता तुमने कैसा किया, और अगर अब भी नहीं किया तो लिटरली गो फॉर यूट्यूब, और उसमें मेरा वो 4 दिन का 5 दिन का पूरा असेसमेंट प्रोसीजर, बिकॉज एक्चुअल फ्लो वो है। ओके इफ यू हैव नॉट डन आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर दैट, और कर लिया है तो फिर क्वेश्चन बैंक करो। ओके। हमने तो कोई याद ही नहीं करते केस के नियम पर। केस लॉ के नेम याद कैसे, जो लेटेस्ट फॉर्म से आएंगे, अभी हो गया तुम्हारा May 23 के लिए तुम्हारे आरटीपी में कुछ आएंगे, पास 3 अटेम्प्ट के 3 बस, या ज्यादा से ज्यादा 4 अटेम्प्ट के जो आए हुए केस लॉज है ना। हम याद Ma'am, ही नहीं करते। yesterday when we were telling about interlinking, you told about business connection and business control, no ma'am? बिजनेस कंट्रोल कहाँ आता है कि when resident and not an ordinary resident is having a business control in India, but for a non-resident it is business connection in India to be deemed to arise in India flexibility के लिए। तो for resident and not an ordinary resident business control word is used, and for non-resident Priority areas. For example, primary. for transfer pricing is methods of calculation. वही priority and then APPA. Methods APPA, and you have now 30% का EBIT DTA, interest, primary secondary, 4 चीजें तो हैं उसमें, primary secondary adjustment, EBIT DTA का 30% वाला disallowance, and then your APPA and ये 5 calculations. अब ये केस स्टडी भी हो सकता है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, एनीथिंग, बिकॉज ओवरऑल ट्रांसफर प्राइसिंग इज इम्पोर्टेंट। मैम वो मैंने प्रोविजन पढ़ा था कि वो इंटरेस्ट वाला मैम 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है मैम, और उस 8 इयर्स कैरी फॉरवर्ड के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन जुलाई 21 में पूछे, ठीक है, तो चेक दैट, ठीक है। सो शैल वी एंड फॉर डीटी, है ना। सो दिस इज व्हाट आई विल शेयर दिस PDF also, 2 minutes break and let me check, अगर कुछ important नहीं है तो we will calculate for IDT also. Please, and recording also. Please share the recording also, ma'am. You are there ना? Why you need recording? मैम एक बार रिपीट हो जाएगा तो यू नो Revision अच्छे of से this माइंड में फिक्स हो जाएगा। Because I need it because I have missed few things in translation. Okay, and you have taken cumulative revision so seriously. मतलब इस चीज का भी you need revision, क्यों चाह रहे हो? या मैम फिर माइंड में उसी अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क रहेगा ना, whenever we'll start studying वो ऑलरेडी फोकस वहीं जाएगा उन्हीं Mind सेक्शंस में। mapping. या so it will be easier. Give me 2 minutes, okay? That is the reason I told you I need time. Now it's almost going to be 3 o'clock.
Give me 2 minutes. Let me arrange the things so that half an hour we can take and close the ITT also. Give me 2 minutes. मैम आईडीटी का इंडेक्स मैम क्या करें, मैं मॉड्यूल लेके बैठे मैम, भागड़ नहीं है मैम। चलो Veda, I will keep in mind for English now. I forgot. Chalo. Come back soon. Akshara, everyone. Video on, video on, video on. पढ़ाई चल कैसी रही है कि बस चल ही रही है, बाकी तो अता पता है ही नहीं। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती मैम, एग्जाम के वो 1.5 डेज वाले वैसे स्पीड क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आती? क्योंकि वो 1.5 डेज की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो जब फुल टेस्ट होगा ना, दैट फुल टेस्ट यू हैव टू टेक लाइक दिस 1.5 डे। क्या Ma'am, in the Hmm. last video, after that 44B and 172, after PGBP, you have said something, ma'am, like 115 BAC, computation of total income. Do you remember what you have told? I don't remember, but that repetition is not possible. I will give you recording. Thank you, ma'am. Because that is not possible, because 44B say you have left, that means assessment procedure, everything you have left. Just that part. Yeah, fine. Thank you. Okay. चलो। आ जाए। Now coming to GST. Ma'am, GST क्या? GST में is it section wise I have to go? गलत हो जाएगा. If you go section wise in GST, that is totally cheating with the subject. Why? Because GST need linkage. GST में अगर कुछ चाहिए तो क्या चाहिए? It need linkage. तो मैम ये मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 ये कहाँ से है? This is entirely from your क्वेश्चन बैंक, वो तुम्हारा GST का मॉड्यूल ICI का, उसके अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग यू, so that will be convenient for everyone. Now, if I talk about this first chapter, भाई ICI ना ICI है, तो ICI जब ICI है तो many times they are asking history of GST. मतलब अच्छा तो नहीं लगता बोलते हुए, that in this latest attempt audit में they have asked ethical requirements. तो समझ लो, they are expecting कि तुम्हें ये पता है तो you should know this also and write it properly, and such a easy question, ethical requirement or history of GST. So for that reason MCQ इसका आता है, yes definitely. The chart I will give you, do that chart. उतना ही मैम, बहुत फोकस करना है नहीं, बहुत फोकस नहीं, इट इज लर्निंग वाला चैप्टर, कोई लिंकेज, जीरो लिंकेज, लर्न करना है हिस्ट्री, यू हैव टू लर्न दैट, तो कोई लिंकेज नहीं है इसमें. तो कैन आई से इट इज बी कैटेगरी? यस इट इज बी कैटेगरी. मैम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कहाँ है? एमसीक्यू या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन, बेनिफिट एडवांटेज ये सब चीजें ऐसा. मैम व्हाट अबाउट अदर चैप्टर? क्या करें इसमें? इसके बिना तो जीएसटी ही नहीं है.
Because of this definition, so the students who have done the classes, they would understand more the importance of this. क्यों इनको पता चलेगा? Because सब कुछ तो यहाँ पे क्या है, linkage है. Everything is what linkage. तो यहाँ पे ये हो गया मेरे लिए important. मैम अब इसमें कैसे करेंगे linkage? See, honestly, it is not possible for me to tell you how to do the linkage because every word is having a linkage with the topics. हर word का कहीं ना कहीं linkage जाता है. वो अब possible इसमें तो हो ही नहीं सकता. So for that, एक तो video only on linkage I have given on YouTube जो previous attempt का है. But the linkage are same. RCM का linkage, इसका linkage, उसका linkage with revision I have given a linkage का video that you can utilize. First thing. Second thing, what are the linkage? सिर्फ linkage बताए कि कहाँ पे क्या linkage है, उसका भी एक I have given a video on YouTube. I have to share the link. इन दोनों की I have to share you the link. And those who have planner, they are already having that. ठीक है. मैम सप्लाई अंडर जीएसटी में स्पेसिफिकली किस पे फोकस करना है? शेड्यूल 1. Because they ask many questions related to schedule 1. मैम कहाँ पे होगा ये सप्लाई का, इसका लिंकेज कहाँ पे हमें मिल सकता है? सिर्फ अगर मैं सप्लाई चैप्टर की बात करूं तो ITC, those who have done ITC should be done at last. It is important, but सबसे आखिरी में ITC होना चाहिए. क्यों? Because ITC has adjustments of supply. ITC has adjustment of charge of GST. ITC has exemption. ITC has place of supply. ITC has time of supply, value of supply. बोलना क्या चाह रहे हैं? ITC without all this chapter is impossible. Understood? So, ma'am, my first step should be to understand supply ka definition properly. For you, supply ka entire lecture I have uploaded on YouTube. 3 to 4 classes only on supply ki definition. 3 से 4 class सिर्फ supply की definition पे, as well as revision lecture is also there. दोनों चीजें. तो if you want, you can go through that. So you will understand सारी की सारी linkage क्या है, because supply is the base. वो base है. ठीक है. Second, मैम चार्ज ऑफ जीएसटी में what is important in this chapter? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी किसी को ज्यादा अच्छे से समझना है तो that is goods transport agency. Done. In your reverse charge mechanism only it is goods transport agency. Most important. I'm not saying कि सिर्फ यही आएगा, but GT is tricky one. मैम can I say RCM is a category? Yes. इसके बाद मैम जीएसटी के चार्ज ऑफ जीएसटी में क्या है? इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई, ये सारे टॉपिक्स आते हैं. अब the most common mistake when you write interstate, when you write intrastate, the language that you are using totally wrong. गलत language use करते हो. Sushmit, what is interstate? If you still remember, क्या लिखोगे तुम? State, ma'am, location of supply and location of recipient are in different states. Location of supplier, location of recipient in different states. और अगर मैं बोलूं कि इसकी जगह ऐसा लिखो, when registered in 2 or more states, ऐसा करके बोल सकते हो क्या? 2 or more state, 2 or more union territory, different union territories. या फिर मुझे ये वर्ड लिखना होगा. सप्लाई तो अनरजिस्टर्ड होगी तो अभी मैम इंटर कवर होगा ना. So you have to check wisely. Inter और intra में दो words use हुए, location of recipient and place of supply. वो जो word है ना, that is place of supply. Because of that word place of supply, chapter पूरा arise होता है place of supply. उससे पता चलता है कि अच्छा
अगर यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ है एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट चैप्टर, फिर पता चलता है कि व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ मैं वो समझ गया, इवेंट वाला सेक्शन से मैच होगा 12/7 से। अगर रजिस्टर्ड परसेंट है तो लोकेशन ऑफ वो हो जाएगा रजिस्टर्ड परसेंट, और अनरजिस्टर्ड परसेंट हुआ तो प्लेस ऑफ इवेंट हो जाता है। Are you getting? तो बेसिकली मेन चीज अभी मैं उसको डिटेल में नहीं हाईलाइट करूंगी सुष्मित, क्योंकि ये तो अलग से बहुत सारे टॉपिक खुलेंगे। बट व्हेन यू राइट इंटरस्टेट वर्डिंग्स आर इंपॉर्टेंट। मैम मिक्स्ड सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई में कोई वर्डिंग है? जनरली मैंने जो पहले मिस्टेक देखी थी, स्टूडेंट राइट कंपोजिट सप्लाई मतलब 2 और मोर सप्लाईज, कंपोजिट सप्लाई मतलब 2 और मोर सप्लाई। नहीं भाई, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई। तो बेसिकली टैक्सेबल होना जरूरी है। तो ये छोटे छोटे वर्डिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन, ठीक है। तो मैम चार्ज ऑफ जीएसटी में दूसरी चीज क्या फोकस करना है? ये टाइप्स ऑफ सप्लाई। मैम ये यूज होते हैं क्या? यू आल्सो नो, कंपोजिट यूज होता है, मिक्स यूज होता है, इंटर यूज होता है, इंट्रा यूज होता है। अब हमने क्लास में जो लिंक किया मैं वो अभी नहीं बता सकती, बट द स्टूडेंट्स हु हैव डन दे वुड नो कि यहाँ पे मैंने जीरो रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी बताया था। व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो नाउ व्हाट यू शुड आल्सो डू, जब ये पढ़ रहे हो ना, तो जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई तुम्हें पता है कहाँ पे मिलेगा? यू विल फाइंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर वाले टॉपिक में। तो ओनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला जो टॉपिक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या फोकस करना है? इन दैट फोकस ओनली दिस टू थिंग्स, सिर्फ ये दो चीजें, जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। Because there is a difference between zero rated supply and exempt supply also, but you have to focus entirely उसमें से किसी पे focus करना। Done? Because GST is not about types of question, GST is about types of linkages, ठीक है? तो मैम can I say कि I have done 2 things, ये हो गया, ये हो गया, and this also done, and इसके साथ I should do zero rated supply and I should do this exempt supply. Done? चलो, then इसके बाद आता है मैम मेगा एग्जेम्पशन, इसके बाद आता है प्लेस ऑफ सप्लाई, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस, बट पूरा मॉड्यूल नंबर 1 इज ए कैटेगरी, entire module number 1 is a category. Ma'am, what is the marking for this entire module number 1? 20 to 25 marks overall from only this module. Done? Ma'am, अब specifically if I go to this chapter, अब मैं linkage बता देती हूँ कैसा होगा। Now listen to me properly. When I talk about linkage, so ma'am, suppose it is supply. ठीक है, whether something is supply or not, पहले जज करने के लिए you should know whether it is goods or service or not. कोई चीज अगर goods नहीं है और something is not service, तो entire GST का concept is not applicable. Then after this, suppose ma'am, yes it is good, yet it is supply, and specifically इसका भी video I have given detailed. वो detail 1-1.5 घंटे का है, how to link all this thing. ठीक है, तो 1 hour 1.5 hours का already the video is there on YouTube. After this, suppose it is good, suppose it is service, and you were about to say yes it is supply. Wait, check schedule number 1, schedule number 3, neither supply of goods nor supply of service तो नहीं कर देता, ठीक है। Now it is supply but no consideration. Then check schedule number 1. That is also having certain probabilities, but check schedule number 1. चलो ये तो हो गया। Ma'am, I am about to say yes it is supply. It is not covered in schedule 3, not covered in schedule 1. It is a supply. But ma'am, when it is a supply, धीरे से पता चलता है। Exemption में ये cover है। For an example, import of service. Mega exemption में लिखा है, if you import service and you are a charitable trust, you are importing the service for charitable activity, that is mega exemption. तो ये यहाँ कहाँ पे लिखा है? Mega exemption में.
So supply का linkage where you will find, specifically import of service का linkage where you will find in mega exemption. So even in the definition of supply, import of service का linkage you will find in mega exemption. Point number 1. Again मैम import of service का linkage कहीं और है, reverse charge mechanism. Again import of service schedule number 1. तो only import of service को लिख लो. Import of service, only one thing, import of service. First linkage to mega exemption, then linkage to RCM, then linkage to schedule 1 only. खुद के खुद में ही है वो. Understood? Because जब तुम इसकी प्रोबेबिलिटीज खोलोगे तो समझ में आएगा. यू आर अबाउट टू से कि ये तो टैक्सेबल है, फिर पता चलेगा फॉरवर्ड या रिवर्स. इंपोर्ट ऑफ सर्विस में ऑलवेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा, नहीं लगे थे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. मेगा एग्जेम्पशन बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस, वो तो मेगा एग्जेम्प्टेड है. इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इवन फॉर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मेगा एग्जेम्प्टेड. मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस को कहाँ लिंक करोगे? आरसीएम, मेगा एग्जेम्पशन दोनों. अंडरस्टूड? डन? मैम ये एग्जाम्पशन चैप्टर के अंदर है मैम कुछ, मतलब ये वाली जरूर, ये वाले अच्छे करके जाना, ये वाला मत करके, मतलब ऐसा उसके अंदर बाइक को भी कुछ मिल जाए तो ज्यादा सही रहेगा. इंपोर्ट ऑफ सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है. शेड्यूल नंबर 1 इंपॉर्टेंट. शेड्यूल नंबर 1 के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट. एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिंकेज बताया कहाँ निकलेगा. मेगा एग्जाम्पशन वाला चैप्टर मैम, वो पूरा चैप्टर ही मैम एग्जाम्पशन वाला, वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है. बट क्या होता है व्हेन दे गिव क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कई जगह लिंक निकलती है एंड यू आर सेइंग कि ये तो टैक्सेबल, पता चलेगा तुम्हें याद भी नहीं है कि मेगा एग्जेम्पशन से लिंक है और वो मेगा एग्जेम्प्टेड है. गेट इट? Ma'am, can you show the index once? इंडेक्स Similarly, ma'am, anything important in chapter POS, TOS, like what entries we should specifically do other than import of service? linkage for POS, the place of supply में obviously 12 and 13 section are important. ठीक है. When you will apply 12, when you will apply 13. Section 12 is applied when both recipient and supplier is in India, but service might go outside India. But when it is 13, either service recipient or supplier one is from outside India. Outside. Service India में ही हो सकती है. So you have to judge like this. So 12 and 13 are more important. Ma'am, value of supply, time of supply, ये पूरे के पूरे important है. I'm saying ना, schedule ये module number 1 is your A++ category. Without this, GST का base ही नहीं बनता. Without all this chapter, can I say कि there is a base of GST? Obviously, you would say नहीं, कोई base ही नहीं इन सब के अलावा. Understood? चलो. मैम जीटी है. अब आरसीएम पे जा रहे हैं. आरसीएम में स्पेसिफिकली जीटी है. आरसीएम एंड आरसीएम में भी स्पेसिफिकली हम किस पे जाते हैं? जीटी पे. मैम व्हेन आरसीएम वी आर गोइंग टू जीटी, जीटी अभी मेगा एग्जेम्पशन से देयर इज लिंकेज. Transportation of goods का service, and what transportation is organic manure, that is mega exempted in your mega exemption. Understood? So even you are saying your RCM will be applicable, mega exempted. Ma'am, reverse charge mechanism without threshold limit, ये भी याद रखना. Reverse charge mechanism का direct linkage goes to registration chapter, because if you have done even a single thing that is having reverse charge mechanism without threshold limit, you have to get registered. Understood? देखो, I can give you just an idea. ये चीजें कहाँ लिंक होती है. Not at all possible कि मैं सब बता पाऊँ, but you will find कि एक supply की definition पूरा के पूरा it is spreaded in your GST. ठीक है? चलो. Then coming to this module number 2. अब मॉड्यूल नंबर 2 में सब कुछ करना होता है क्या? नहीं,
सब कुछ नहीं करना होता है मॉड्यूल नंबर 2 में. स्पेसिफिकली यू शुड फोकस. मैम कब करना है? लास्ट, एकदम लास्ट. Why? Because without doing your module number 1 properly, you cannot do this. So keep it at last. Last matlab after module number 1. And before that, do complete TDS, TCS also, and job work. Now all these things you will find in your ITC. This सब ITC में you will find. So if you want to complete ITC, complete module number 1 and also complete TDS, TCS and job work. Now proper linkage खत्म होता है for ITC. Whatever topics you will find in ITC, that will be from all these chapters only. Done? चलो. Ma'am, registration में what is important? वो limit, where 40 lakh applicable, where 20 lakh applicable, where 10 lakh applicable, and recent छोटा सा कुछ खास amendment नहीं है, revocation of suspension, वो वाला topic is important. So specifically registration में revocation of suspension as well as limits. मैम ये आईटीसी के क्वेश्चन मैम कहाँ से प्रैक्टिस करना है मैम? मॉड्यूल बहुत है कि मैम पास्ट ईयर वगैरह भी देखना चाहिए? I would तो suggest to be frank बांगर, और अगर नहीं है तो which book you are having? मैं मॉड्यूल है और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ही देख रहा हूँ मैम. या वो समझ लो मैम उस तरह से अपने अग्रवाल सर, अतुल सर या अजय सर वाली बुक है. Sufficient. Ma'am, should I do this? C category. Last. But yes, in this, if you have to focus specifically, last में भी नहीं रखते हुए, if you want to focus specifically something, तो वो पता है क्या है? Concept of credit note debit. Entirely theoretical, do not practice questions for this. But provisions, किसी के provision important है तो this. Ma'am, for registration limits, questions are important, ma'am. Question पता है कैसे आएंगे? They will say कि whether the person is required to get registered or not. But at this pace, when already GST को आया हुआ है, it is almost years. You can't expect this question. They will be framing कि whether needed to get registered or not. They will give you a link only. Okay, Veda? Yeah, ma'am. Thank you. Now, should I do this chart? And this is C plus category. Huh? You have to mug up. These are the books of account that a particular manufacturer has to maintain, trader has to maintain. C plus category, Rattant Vidya. That is mug up concept. But ma'am, this important. You will find a question always on either the job work, always a question is there. So this is A category. Ma'am, practical question होते हैं क्या? No, conceptual. These are all conceptual question. Ma'am, practical question module number 1 और ये end हो गया यहाँ. All your conceptual question that was practical वो इतने ही थे. Now every time you will find it is case study or conceptual questions. Okay. Ma'am, ये only revision video. कोई भी किसी का भी revision video only, no reading needed, no reading. Why? Because this you have to apply while calculating ITC. Apply तो करते हो इसको. There no chance it is C++. No chance of any case study possible. क्यों? समझ रहे हो ना? For payment of tax ITC में करते क्या हो तुम? यही तो apply करते हो chapter. Are you getting that? In your ITC you are applying this chapter. Now this already we have covered. Before ITC we have to do A category, TDS, TCS. Now independent question might come. Yes.
Ma'am, what about return chapter? Do Banger summary. बस उसमें भी learn only learn the name of returns, nothing else. Only learn कि किसकी ड्यू डेट क्या है, कब कौन सा रिटर्न फाइल होता है. No details needed. Only Banger PDF you have to do. If you have Banger or whatever book you are having, that means it is a summary kind of chapter. बस पता होना चाहिए कि है. Till now 0 questions have been asked from this. But इसको use कैसे किया था? They have just used dates for calculation of ITC. Dates they have used for the return, and dates of the return they have used for the calculation of tax payment. For that reason, you must know कि which return should be filed at which date, because the due date of return tax payment की होती है ना. ठीक है? तो basically, can I say कि मैम 2 चीजें समझ में. Module number 1 and ITC and TDS and TCS all practical questions खत्म हुए. After that, the era of conceptual questions start. On conceptual question E-level. Conceptual question will be from your job work. अभी आएगा third module में. Conceptual question generally asked from there. Conceptual question from demand and recovery. So concept, you know the concept, you can do that. You know the concept, you can do that. Understood? Chalo. Up coming to third module. Now, in this third module, what should I focus? अभी क्या बताया था? Only 0 rated supply and exempt supply. बस. Now, in refund, there is a calculation of refund. वही refund का calculation you have to do. One link I have shared, in that 1 hour, पूरा concept of refund has been given कि how refund process, उसका processing कैसा होता है. In that, if you know the processing of the entire return, then from directly any summary, read that. Because what is important is that linkage, कि वो refund का processing कैसे होता है. Once you know the processing of the return, any summary note is sufficient for you. And in refund, only focus on calculation of refund. Because this calculation of refund will also come in ITC. ITC when you have questions on that. And basically it is a unitary method. Unitary method that you have done. Of 1 pen. The way you do. Actually, there is no formula for calculation of refund. When you do that formula, identify this is just a unitary method. When my income is itna, so my ITC itna. When my income is itna, so how much is the refund? In that way. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, ma'am, what about this? A category. Ma'am, what about this? This. A category. ये A category. ठीक है. अब बचा क्या? Ma'am, this A category, but ये क्या? All the lectures for this already I have given on YouTube, and only the chart mind map that I have made more than 100% sufficient, because all these charts are made from your study material only. और जब study material charts में complete हो गया, तो फिर कुछ भी नहीं बचता. Understood? So for all this, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, everything you will find on the YouTube. Link is also there. Just I need to share the chart, and I guess students of the class would have got the chart, I guess. And if not, I will again share. Ma'am, what about this advanced ruling? Only chart. Only chart. So basically, ma'am, module number 3, can I say we need to know only concepts? We need to learn only provisions. Exactly, you got it right. If you learn the provisions properly, no one can stop you from solving the question, because they are all case study. All the questions directly case study. Understood?
Now when coming to custom में क्या करना है? First priority is valuation. पहला priority valuation. Second priority is your baggage duty drawback. Third priority baggage. First is valuation. Second is your that duty drawback. Then baggage. Then types of duty. And then refund. ये ज़्यादा strong होने चाहिए. Because every time हर एक का एक एक question is there in your question. Every time types of duty का question yes, valuation का question yes, duty drawback का question yes, baggage dicey might be. Understood? मैम फिर refund छोड़ना है क्या? ना बिल्कुल नहीं. IC का favorite है. This type of C category ना, then whenever they want to do the tough paper, C category is favorite. So don't skip C category, but C category के provisions you should learn. Understood? Valuation, duty drawback, baggage, types of duties. And then उसके बाद देखो valuation हो गया, duty drawback हो गया, types of duty, baggage और refund. ये तो बिल्कुल आना ही चाहिए. Then your warehousing. ठीक है? मतलब basically practical question आता है duty drawback, types of duty and valuation. Valuation 100% question. Types of duty 100% question. Then baggage dicey होता है, कभी baggage कभी duty drawback, ऐसा चलता है. Understood? Warehousing theory based, ma'am. Pardon? Warehousing is based on theory, case studies. Warehousing case study, direct question, ऐसा चलता है. But the practical questions are most probably there. Warehousing the type of question may differ. Sometimes this, sometimes that. But it is easy to cope up if you know the provisions. And what about ma'am FTP? Learn only schemes. Don't go in the detail. Only schemes. Scheme you should know, and the calculation given in the scheme that is so simple. Plus minus वाली scheme होती है. 5 marks के लिए only that much time you should give, not more than that. Understood? अगर 5 marks का करना है तो इससे ज़्यादा you should not give the time for FTP. Only schemes. आ गया तो ठीक है, नहीं तो be ready for that residual risk. 5 marks is okay. ये FTP में 5 क्वेश्चन से कवर करें मैम बेटर रहेगा कि बोल तो रही हूँ, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस मत करो, सिर्फ स्कीम. क्यों? क्योंकि उसकी स्कीम में डायरेक्ट पूछते हैं 3 टाइम्स किसमें, 2 टाइम्स किसमें, उसके क्या तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? वो तो वी कैन डू. तो ओनली स्कीम लर्निंग बस. कोई क्वेश्चन टाइम है तो फिर तो सब करो, नहीं है तो बस इतना ही करो. और बोर्ड ग्रुप वालों के पास टाइम नहीं होता. ठीक है? Ma'am, what is the weightage of module 3? मॉड्यूल 3 का 25 to 30 रहता है. ओवरऑल अगर मॉड्यूल 1 और 2 की बात करूं तो मिलजुल के 50 मार्क्स वही देते हैं. तो क्योंकि मॉड्यूल नंबर 2 में है क्या, आईटीसी ऑलरेडी कवर हो गया तुम्हारा. इन योर मॉड्यूल नंबर 1 के साथ आईटीसी आ जाता है. रजिस्ट्रेशन पे स्पेसिफिक क्वेश्चन ज्यादा होते नहीं है. व्हाट इज लेफ्ट? ई-वे-बिल. बेसिकली इट इज ई-वे-बिल दैट इज लेफ्ट. Some composition scheme. कंपोजिशन स्कीम वही है, चार्ज ऑफ जीएसटी में. चैप्टर That नंबर is an A category topic, ma'am. yes, obviously composition scheme is a category topic that is in your charge of GST chapter. Module 2 covers how many marks, ma'am? That is from ITC to I will share the paper analysis again. IDT का paper analysis there it has been written कि module number 1 का कितना expected, module number 2 का कितना. So 4 paper analysis I have done. Okay, check that out. We have 5 minutes if you want to ask something because I have delayed that for half an hour. मैम चैप्टर नंबर 4 मैम. चैप्टर नहीं ऐसे मत बोलो, मुझे ऐसे चैप्टर को याद नहीं है. एग्जाम्पशन मैम मेगा एग्जाम्पशन वाले उसका मतलब कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पशन नहीं करके जाए मैम ढंग से, या फिर क्या करके जाए मैम? वो 127 पेज का चैप्टर है मैम. 127 दिख रहा है, but the way of doing mega exemption is wordings याद करना. For an example, educational institute is important in that. A common mistake in educational institute is when you provide service to student, faculty and teacher.
स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टी, उनको जब तुम सर्विस प्रोवाइड करते तो कोई भी सर्विस प्रोवाइड होती है। रिमेंबर अजय, दिस वाज द मिस्टेक यू हैव डन इन द क्वेश्चन, कि जब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे टू स्कूल, टू स्टाफ, टू फैकल्टी, कोई भी सर्विस होती है, बट व्हेन दे आर रिसीविंग द सर्विस यू हैव टू चेक व्हिच टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इट इज। तो वर्डिंग्स यू हैव टू पे, टू कहाँ है, बाय कहाँ पे, मेन वर्डिंग्स आर देयर, दैट मेन वर्डिंग्स, डोंट लर्न द प्रोविजन का पूरा सब कुछ, मेन कंटेक्स्ट, टू बाय किसको क्या, एग्रीकल्चर में क्या है, कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग इज एग्जाम, बस खत्म, अंडरस्टैंड दैट। बट या थोड़ा कीवर्ड तो पता होना चाहिए कि इफ आई वांट टू फ्रेम एन आंसर, छोटा मोटा इतना तो बताओ कि कैसे लिखेंगे। व्हेन वी कम टू दैट हेल्थ सर्विस में पैरामेडिक्स, थोड़ा भारी वर्डिंग, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, आर यू गेटिंग, वो वर्ड्स वी नीड, so you have to understand mega exemption with the context, main thing is context, to कहाँ है, by कहाँ है, to भी वही होगा, by भी वही होगा, वही specific organization भी होना चाहिए, organization change होगी तब भी you will not get the mega exemption, so word to word, जैसे RCM होता है ना, यही recipient यही provider and this is the service, exact, इतना भी change हुआ तो RCM नहीं forward charge, same, if the recipient is that, provider is that, service is that, conditions are there, mega exemption, एक भी गई mega exemption cancel, okay, so focus on to and by, ठीक है। Ma'am, can we keep a session on presentation, especially for IDT? I have already given it on YouTube for 1.5 hour का वो पूरा दिया हुआ है, and Okay, ma'am. presentation for ITC cut copy paste ICI, कुछ और नहीं, ITC मतलब ICI, जैसा वो सॉल्व करते हैं ना, the way they solve that you have to do, वो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले they calculate supply output tax liability, then they calculate ITC मतलब purchase, then उसके बाद electronic credit ledger में how much of the credit will be going, उतना है, फिर उसके बाद they will be calculating TDS में कुछ है, RCM में कुछ है, तो exactly follow ICI का approach, क्योंकि वो मार्क्स भी उनको तभी मिलेंगे क्योंकि ITC में तुम लोग बहुत गंदा प्रेजेंटेशन रखते हो, क्योंकि ऑलरेडी तो घबराए हुए रहते क्वेश्चन नंबर 1 से, फिर वो घबराहट हम पूरी दिखा के आते, देखो हम घबराए, ठीक है। Also for like if a question is of 4 marks, if a question is for 1 mark, how much to write? See, If it's for if 2 the marks. question, see, समझो, क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, एक लाइन में कंक्लूजन, सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख के तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, 1 लाइनर कंक्लूजन। हम क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स पूरा प्रोविजन लिख के लिंकेज टू द क्वेश्चन देन कंक्लूजन नहीं, इफ इट इज 2 मार्क्स डायरेक्टली लिंक विद द क्वेश्चन, समझे, क्वेश्चन को पिक किया, प्रोविजन पिक किया, डायरेक्टली लिंक करो एंड राइट 1 लाइनर, लिंक किया एंड देन लास्ट में कंक्लूजन वैलिड इनवैलिड व्हाटएवर इट इज, तो 1 मार्क डायरेक्ट कंक्लूजन, 2 मार्क्स डायरेक्ट लिंकेज टू द क्वेश्चन, 4 marks whatever expected कि this is the confusion point in the question, उसी का provision, बस उसी से related, पूरा लिखने मत बैठना सारा provision, whatever needed in that question वो provision, then link to the question, then conclusion. This is the way of saving your time and writing to the point needed in exam. Ma'am, of 6 For 4 marks, ma'am, do we have to follow that format की issue, then provision, then analysis, and then conclusion? But वही तो बोला मैंने, 4 marks issue एक लाइन में, और इतना उसको पैराग्राफ मत बनाना, what is the issue, tax liability calculation for XYZ whatever it is, बस इतना ही, that means requirement of the question is your issue. हम provision कौन सा लिखें, whatever is needed in the question, जिस चीज पे उसने पूछा है directly whatever, वही provision you have to write, then link to the question, conclusion, पूरा आजू बाजू की सारे प्रोविजन नहीं लिखना है, दिस इज नॉट बुक। 6 मार्क्स से अब स्टार्ट होता है थोड़ा एक्स्ट्रा, 8 मार्क्स में प्रोविजन प्रॉपरली लिखना चाहिए, कैलकुलेशन शुड बी प्रॉपर, वेयर एवर पॉसिबल दिख रहा है कि ये टीडीएस कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करो, यूनिट्स यू शुड रिमेंबर, रुपी पर यूनिट वो सब लिखते ही नहीं है, दैट यू शुड रिमेंबर,
ठीक है? मैम फॉर कैलकुलेशन जैसे फॉर्मेट भी मेक अ टेबल फॉर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में, तो वी नीड टू गिव नोट्स फॉर रीजनिंग, उसका देना पड़ता है ना कि इफ इट्स इंक्लूडेड और नॉट तो इंक्लूडेड जिस एग्जाम। अभी तो लेटेस्ट पिछली बार में तो यही अच्छा तुम तो थी नहीं ना। so ma'am should we write over there like for example if कैसे करना agriculture should- service exempt एंड फिर उसका इलैबोरेटेड पॉइंट नीचे भी लिखना है या डायरेक्टली उसके साथ ही उस ठीक है, टेबल मैं में ही वी बताया। शुड? उसको कैसे करते हैं, इंस्टीट्यूट हमारा बहुत ही इंस्टीट्यूट है, मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट है विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है? तो व्हाट दे डू, सबसे पहले ऊपर जब तुम लिख रहे हो ना टी शेप, समझ गए ना, टी शेप में लिख रहे हो, एक लाइनर लिख दो एग्जाम एजुकेशनल सर्विस वाटर, एक लाइनर, फिर नीचे ढंग से बता दो इफ इट इज 6 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ऊपर उसको हिंट दे दी एग्जाम ड्यू टू दिस रीजन, फिर नीचे ढंग से प्रोविजन लिख दो कि ये ऐसा क्वेश्चन में हुआ है, लिंकेज टू द क्वेश्चन एंड देन राइटिंग द प्रोविजन। उससे होगा ये, उसको ऊपर भी दिख गया नीचे भी दिख गया, ही इज नॉट एबल टू डिडक्ट योर मार्क्स। बट स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ टी शेप में लिखा नहीं, नीचे लिखा नहीं, उनको तो टी शेप के अंदर रीजन चाहिए था, अब लिखते हुए भी दे हैव डिडक्टेड द मार्क्स, so for that reason I am saying T shape and 6 marks or 8 marks का question, they have given 10 marks का question now, 6 is starting है, so right छोटा सा summary, छोटा एक लाइनर 2 लाइनर, तुमको भी पता चल जाए कि मेरे को पता है ये रीजन है, ये कट कॉपी पेस्ट एकदम एक्यूरेट लिख लिया, फिर नीचे लिंक टू द क्वेश्चन एंड राइट दिस इज द रीजन और ये सब हुआ है, समझ गए? तो उनको दोनों जगह दिख रहा है, दैट इज अ I can say safe approach. ठीक है? So this is the last call for the mentoring session that we have connected. ठीक है? वाइवा तो मैं क्या ही बोलूं, क्या वाइवा देते हो तुम लोग, मुझे लगता है I have cancelled that now. इतना सही वाइवा कैसे दे लेते हो? कोई राज? हम इतना लर्न कर लेते हैं ना कि फिर लगता है कौन बोले, अब छोड़ो। We have already learned it too much. ठीक है? So this was the last thing what I expected for a mentoring. I should have told you. और प्लीज अपने दिमाग की इतनी गुगली को लेना बंद करो कि जब एक सब्जेक्ट तुम कर रहे हो तो ऑब्वियस है दूसरे की टेंशन होगी, बट शिफ्ट करके तुमने कुछ नहीं किया, जो लिंक तुम्हारी एक सब्जेक्ट की बनी थी तुमने वो भी छोड़ दी, समझ रहे हो? इट इज फॉर एवरीवन आई एम टेलिंग कि इफ यू थिंक कि मैम बीटी कर रहे आईडीटी नहीं हो रहा, थोड़े दिन बीटी को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि अभी आईडीटी थोड़ा सा कवर होगा क्या 50-50 दोनों ही चल रहा है, बेटर बी काम, प्लान आउट कि नहीं डीटी नहीं छोड़ना है, हाउ कैन आई पिक माय सेकंड सब्जेक्ट बिकॉज डीटी तो करना है, कंप्लीट आज भी करोगे कल भी करोगे, हाफ वे डन इज नो वे डन, समझ रहे हो? तो ये चीजें अब स्टार्ट होंगी बिकॉज इट इज ओनली 1.5 month टू द एग्जाम एक्चुअल में, और मेरे हिसाब से तो इट इज ओनली 15 days टू द एग्जाम। जो हमने कभी डिसाइड किया था वो तो मुझे पता है कि वो डिसीजन के टाइम शायद तुम्हारा कुछ छुट्टा हुआ भी होगा, दिमाग में रखा है तो ठीक है। सो ऐसी गुगली अगर आए दिमाग की तो प्लीज मेक अ प्रॉपर रैशनल डिसीजन, किसी चीज से भाग के तुम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो, इट इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन हु हैज आस्क्ड मी, इट इज फॉर एवरीवन। क्योंकि तुमने इधर पूछा है, इधर अजय ने भी पूछा है, मैम इधर कर रहा हूँ तो फर्स्ट ग्रुप का मेरा इतना ही रह गया, plan out wisely. If I think in 3 hours I will complete this topic, no, you will complete it in 5 hours. ये genuine है, because you don't have everything in mind. Time और लगाओ, 3 hours में कोशिश करो, but it will exceed. So that is the way तुम एक बार देख लो कहाँ तक जाओगे, रिविजन करोगे तो ही क्लियर होगा। So it is better to do one group instead of rushing for everything. If you think कि बहुत कुछ है, because time कम है। And those who are going for both the group, anyhow तुम second group कब से छोड़ दोगे? 15th of April, at least 15th नहीं तो 20th of April से you will leave your second group. तो time कितना है? Calculate everything wisely, okay? तो irrational होने की जगह कि ये कर लेते अभी ये कर लेते, that is just your brain is tired of a subject, it wants a shifting. एक दिन में एक सब्जेक्ट मत करो, pick 2 or 3. स्लॉट डिवाइड कर लो वो भी चलेगा, बट एक सब्जेक्ट को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, बाद में पता चलेगा सर्च कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ओके ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट।
enjoy your studies now. This is the high time for 12 to 13 hours or above. Okay, and please give the test. वो टेस्ट है ना, gives your brain a environment of exam. At least एग्जाम में ऐसा ऐसा करते हैं, ठीक है? तो टेस्ट स्किप करके तुम कोई महान काम नहीं कर रहे हो, तुम कोई टाइम सेव भी नहीं कर रहे हो. 1 घंटा तो कहीं और इधर उधर तुम्हारा एक्चुअल में वेस्ट होता ही अभी भी. So you are not actually saving, you are losing the opportunity of keeping your mind in an exam condition. ठीक है? चले? इतना उदास क्यों हो अब्दुल ऐसे? एकदम सीरियस टोन पे आ गए अब सब लोग, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्जाम आ रही है ना, हम हमारे तार हिलते जा रहे हो. ऑल इज वेल. पैनिक होता है. अब तो मैं तुम लोग को मेडिटेशन सेशन के लिए भी फोकस या फोर्स नहीं करती, बट अगर ज्यादा हो रहा है ना, वो नहीं करना. तो कोई भी एक चीज शांति से सुबह उठ के पॉजिटिव एफर्मेशन खुद को देना. इट प्लेज अ मिरेकल. ठीक है, वो होता है. तो इसको कंट्रोल कर लिया तो ये भी कंट्रोल हो जाएगा, और ये कंट्रोल से बाहर गया तो जितना पड़ा हुआ है ना उस पर डाउट आ जाएगा. ठीक है. सो की टू सक्सेस इज क्यूमुलेटिव रिविजन. सेकेंड इज इसका बैलेंस. ठीक है, चले. तो आई होप हैप्पी विद द मेंटरिंग. जितना पॉसिबल हुआ आई ट्राइड टू गिव यू स्पेसिफिक रिलेटेड टू DTIDT. क्लास में जितना पॉसिबल हुआ, बिकॉज क्लास स्टूडेंट्स वर हैविंग बेनिफिट ऑफ मेंटरिंग, और जिन्होंने लिया उनके लिए ज्यादा बेनिफिट था. ठीक है, चले. ओके, हैप्पी स्टडीज. Thank you, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. सचिन, Thank you. चलो जोर से बोलो थैंक यू. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. हाउस द जॉब. Hi. Bye. Hi. 2 लोगों का है, बाकी का है. Low. Hi, ma'am. Reality hitting hard. इसको जितना तुम नेगेटिव फ्रेज दोगी ना, वो धीरे धीरे, ये अभी वो फेज स्टार्ट हो गया है. Why I keep saying from the starting of my classes कि अभी सब अच्छा लग रहा है. Whenever a student goes for work group, Lakshmi knows this. मैं हमेशा बोलती हूँ, remember how much pressure you can take. वो अभी जैसे 6 month है ना, अरे करके दिखाएंगे. रियलिटी ये कि कोर्स बहुत, और उसके बाद 13 घंटे एवरीडे मोनोटोनस पढ़ना इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. रियलिटी इज दैट प्रैक्टिकल सोचना. ऐसा नहीं हवा में नहीं होता. जब हम बोलते हैं इतना, तुम्हारा टाइम टेबल कभी फॉलो क्यों नहीं होता? बनाए तो बहुत होंगे, फॉलो क्यों नहीं होते? बिकॉज व्हेन यू थिंक आज इतना कर लूंगा इतना कर लूंगा, अरे 6 hours की चीज 8-9 hours में होती है, तुम लोग भूल जाते हो. तो एवरी टाइम योर टाइम टेबल शुड बी ओपन एंडेड. थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए, ब्रीदर होना चाहिए उसमें, कि कभी छूट भी गया तो डर नहीं लगना चाहिए. ठीक है, चलो. Bye. Yes, Ajay, you want to say something?